Good morning. May I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes. In the last lecture, we have learned the alter command. Okay. Alter command we have learned. Yes. What is the alter command? What is the alter command, students? Tell me, what is the use of alter command? New column add Yes. and multiple column add. Yes. And or good और क्या किया हम लोगों ने? Which function we have learned doing with the alter command के साथ? Rename. Yes, rename, Update, element update. modify. Okay, update नहीं किया, modify. Okay. Yes. So in the last lecture, we have learned the alter command. Okay, alter command is work with the structure of the database. Okay, alter command work with the structure of the database. ठीक है, structure जो है आपका database का, उसके साथ उसको modify करने के लिए to add columns or to modify the column or to change the name of the column of the existing column. Okay, for that functions we can use the update command, alter command. Okay. Yes. Please give the syntax of alter command to add new column in the existing table. Existing table में new column add करना है. For example, student table है. I already student table is ready. ठीक है, student table already बना हुआ है. I want to add email column. ठीक है, email column मुझे उसमें add करना है. Already table is ready. ठीक है, but I want to add one more column email. तो what is the syntax? Syntax क्या होगा? What is the syntax? Alter table. Alter table student add email varchar. Very good. Okay, so this is a syntax. Okay, तो आपको ऐसे याद रखना है. Yes, सबने इंस्टॉल किया घर पे? All of you install the MySQL. MySQL इंस्टॉल किया सब लोगों ने घर पे? Yes or no? Yes or no? इंस्टॉल किया कि नहीं? जिसके पास सिस्टम है उसका पूछ रही, जिसके पास सिस्टम नहीं है वो ठीक है, जिसके पास सिस्टम है घर पे उन लोगों ने इंस्टॉल किया? यस और नो? मुझे बताओ तो समझ में आएगा. अगर नहीं किया है तो व्हाट इज द इश्यू? क्या इश्यू, क्यों नहीं इंस्टॉल किया? समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू इंस्टॉल कि ट्राई नहीं किया? बताओ मुझे, चलो. यस यस, जल्दी से, आई वांट द आंसर. Yes, students, I am asking to you. No, ma'am. मैम कैसे इंस्टॉल करेंगे? क्यों कैसे इंस्टॉल करेंगे मतलब? यस वे प्रताप, क्या हो गया? सिस्टम नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू इंस्टॉल? क्या करना है आपको? जो लिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू, ठीक है, सी जो सेटअप का लिंक दिया है ना, वेट, ठीक है, ये जो लिंक आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इन योर गूगल क्लासरूम. ठीक है, ये लिंक जो है, जो वर्ड फाइल में मैंने लिंक है ऑलरेडी सेंड टू यू. ओके, उसको कॉपी करो. ठीक है, कॉपी दैट लिंक, देन पेस्ट इन योर ब्राउजर. ठीक है, आपका जो ब्राउजर है, ठीक है, ब्राउजर में उसको पेस्ट करो. वेट, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया वो लिंक. ठीक है, देन द सेटअप इज गिवन हियर. ठीक है, ये डाउनलोड यहाँ पे लिखा है, तो डाउनलोड करो. ओके, द सेटअप डाउनलोड करो, डाउनलोड द सेटअप. योर डाउनलोड इज स्टार्टिंग. ओके,
आई थिंक मैंने उसको एक बार डाउनलोड किया ना, इसलिए मुझे वो करने नहीं दे रहा है। देखते हैं। आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम, ठीक, ऑलरेडी मैंने उसको इंस्टॉल किया हुआ है। यस हबीबा, आपने ट्राई किया इंस्टॉल करने के लिए? हबीबा वेट, ठीक है, ये इंस्टॉलिंग हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको साइड में हम लोगों ने रखा है, ठीक है। तब तक हम लोग वी हैव स्टार्टेड न्यू टॉपिक्स, ओके। टुडे आवर टॉपिक इज कीज, ओके। कीज हम लोग पढ़ेंगे, KEYS, कीज, ओके। Yes, our next topic is keys. This topic is comes in the unit 2. Okay, we have already completed unit 1. All of you have must write the assignment questions. Okay, which are the questions, the topics which we have covered in the unit 1. Unit 1 में अब तक जो भी topics we have covered, we have to write in your notebook as an assignment. ठीक है? I have not given the special अलग से मैं आपको assignment questions I will not give you. Okay, जो topics I have already told you in the lecture, जो topics which we have covered in the unit 1, you have to write all the questions and answers. उसका हर एक topics आपको notebook में लिखना है. It is mandatory for all the students. Okay, unit 1 में जितना भी topics, what is database, what is data, advantages, disadvantages, generalization, specialization, inheritance, ठीक है, ER diagram, data models, architectures, types of architecture, जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है, हर एक का आंसर यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ओके। तो अगेन आई विल नॉट रिपीट, तो ये याद रखो, उसको कंप्लीट करो ना। यूनिट 2 वी हैव स्टार्टेड, ओके। द यूनिट 2 में फर्स्ट आवर कंसेप्ट इज कीज, KEYS, कीज। व्हाट इज कीज? The keys play an important role in a relational database. We are using the relational database, okay। हम लोग कौन सा database यूज करें? रिलेशनल। MySQL जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करें, दैट इज अ रिलेशनल डेटाबेस। व्हाई इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस? क्यों वो रिलेशनल डेटाबेस है? वी आर यूजिंग MySQL, ठीक है, हम लोग MySQL डेटाबेस वी आर यूजिंग। इट इज रिलेशनल डेटाबेस। व्हाई वो रिलेशनल डेटाबेस क्यों है? आपको कैसे समझ में आ रहा है कि वो रिलेशनल डेटाबेस है? कैसे समझ में आ रहा है कि जो डेटाबेस है वो रिलेशनल है? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द डेटाबेस एज अ रिलेशनल डेटाबेस? चलो बताओ। हम लोगों ने पढ़ा ना डॉक्टर EF का रूल्स, डेटाबेस रिलेशनल है तो उनको 12 रूल्स फॉलो करना है। चलो बताओ। यस कोहिनूर, और कौन स्टूडेंट्स है? यस अजय, अनिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स है लेक्चर में, 25 स्टूडेंट्स आते हैं। हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि योर डेटाबेस इज रिलेशनल डेटाबेस? कैसे आप समझोगे कि जो डेटाबेस है दैट इज रिलेशनल? डायमंड शेप बॉक्स, हमने प्रैक्टिकल में कहाँ पे डायमंड शेप यूज किया इरशाद? टेबल में। यस वेरी गुड, ओके। किसने आंसर दिया? किसने आंसर दिया? कोहिनूर मैम। Yes, very good. Okay, relational database means क्या? Our data will be stored in the table. तो in MySQL में जो भी हम लोग डेटा, जो भी टेबल वी हैव क्रिएटिंग टेबल्स है, तो जो भी डेटा उसमें डाले वो कैसे शो हो रहा है? टेबल के फॉर्म में। डेटा कैसे स्टोर हो रहा है? इन द टेबल फॉर्मेट। सो वी कैन से दैट आवर MySQL इज अ रिलेशनल टेबल। वेरी गुड। जो भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको याद रखना है। ऑल टॉपिक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ऐसा नहीं कि यूनिट 1 में पढ़े वो भूल गए, नो, ठीक है। दिस इज अ सॉफ्टवेयर सब्जेक्ट, सारा आपका आईटी में जितने भी सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। यूनिट एक सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ा वो सेकंड सेमेस्टर में भी रिलेट हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट्स आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। टॉपिक्स तो है ही सिलेबस में, बट सब्जेक्ट्स भी रिलेटेड है, कहीं ना कहीं उसका यूज आता ही है। तो ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर 1 में जो पढ़ा दैट यू विल फॉरगेट, ऐसा नहीं, आपको याद रखना है हर एक टॉपिक्स। ये तो मैंने अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था। इन लास्ट लेक्चर में डॉक्टर कोर्स का रूल्स था 12 रूल्स। 12 रूल्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा? पढ़ा ना कि व्हेन द डेटाबेस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, व्हेन द 12 रूल्स ऑफ डॉक्टर
course followed by the any software, any SQL, any software, any database, then it is called as the relational database. तो relational database का first rule क्या है कि the data must be stored in table format. Okay, तो in MySQL जो हमने अभी तक tables we have created the tables in MySQL, student table we have created, faculty table we have created, we have also created customer tables. Okay, we have also performing some उसमें queries also we have performed. ओके तो जो आउटपुट आ रहा है क्वेरीज का, जो डेटा स्टोर हो रहा है, ऑल आर इन द टेबल फॉर्मेट. सो वी कैन से दैट MySQL इज अ रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशन मतलब क्या, जो डेटा है, द डेटा इज स्टोर्ड इन द टेबल फॉर्मेट. Okay, now our concept is keys. Okay, keys is used to uniquely identify any record or row of data from the table. Okay, key is used to uniquely identify. Key is used to uniquely identify any record or row of data from the table. It is also used to establish and identify the relationship between the tables. Okay, what is relation that हम लोग बाद में cover करेंगे, but पहले the main use of keys is to uniquely identify the records. Okay, now अभी जो हमने tables में records जो insert किया in the last lecture में, उसमें हमने कोई keys assign नहीं किया था. We have not assigned any keys. We have just normally created the table. हमने table create किया. Create table student, open the bracket, id integer size, name varchar उसका size, address. ठीक है, तो हमने ऐसे simply table create किया. हमने वो टेबल में कहीं भी we have not applied any types of keys हमने अप्लाई नहीं किया. कीज अप्लाई नहीं किया है तो अगर आप एक ही रिकॉर्ड जो रोल नंबर 1 जो है वो 10 टाइम्स भी रोल नंबर 10 डालोगे ना तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा. व्हाई? बिकॉज हमने उसमें कीज अप्लाई नहीं किया था. ठीक है, तो इफ यू वांट टू इंसर्ट और इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड्स यूनिकली, अगर आपको रिकॉर्ड्स एंटर करना है टेबल में, ठीक है, तो यू हैव टू असाइन कीज. आपको क्या असाइन करना पड़ेगा? कीज असाइन करना पड़ेगा. एंड कीज किसको असाइन करोगे? कॉलम नेम्स को. यू विल असाइन द कीज टू द कॉलम नेम्स. कॉलम्स नेम जो होगा उसको यू विल असाइन द कीज. ओके, क्योंकि द एडवांटेज डीबीएमएस का एक एडवांटेज है कि reducing data redundancy. Okay, reduction or you can say reduction in the data redundancy. The advantage of database is क्या है कि जो डुप्लीकेशन जो हो रहा है, डुप्लीकेशन को क्या करना है? रिड्यूस करना. तो वी कैन रिड्यूस द डुप्लीकेशन यूजिंग द कीज. ठीक है, हम लोग कीज यूज करके वी कैन रिमूव द डुप्लीकेशन. ठीक है, हाउ टू अप्लाई कीज वो हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. नाउ टुडे वी विल कवर द टाइप्स ऑफ कीज. So keys are unique. Keys are used to uniquely identify any records. For example, roll number 1. तो roll number 1 जो है तो we cannot insert the roll number 1 again if we applying the keys. ठीक है, अगर हमने keys अप्लाई किया है तो हम लोग roll number 1 जो है वो 2 टाइम 10 टाइम्स नहीं डाल सकते. हम लोग एक ही टाइम असाइन कर सकते हैं. बट कभी when we have assigned the keys to the roll number को, अगर हम लोग रोल नंबर जो हमारा कॉलम है ना वो रोल नंबर को अगर हम लोग की असाइन करेंगे, प्राइमरी की असाइन. ओके, अगर हम लोग उसको प्राइमरी की असाइन करेंगे तो ही क्या होगा, आपका जो डेटा है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा. अभी तक हमने जो क्रिएट टेबल का क्वेरी लिखा, हमने कहाँ पे भी कीज अप्लाई नहीं किया. आपने कभी वर्ड देखा प्राइमरी की फॉरेन की? नहीं किया. वी हैव सिंपली ओनली क्रिएटेड द टेबल. हमने टेबल क्रिएट किया. अब जब आप उसमें डेट इंसर्ट करोगे, ठीक है, वैल्यूज, तो डुप्लीकेट वैल्यूज इट ऑल्सो टेक्स. ठीक है, डुप्लीकेट्स वैल्यू रोल नंबर 1 2 3 5 अगेन 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 इट विल टेक्स, वो ले लेगा. व्हाई? बिकॉज हमने वहाँ पे कीज अप्लाई नहीं किया था. बट नाउ अभी हमारा एडवांटेज क्या है डीबीएमएस में? कहाँ की रिडक्शन हो रहा है? रिडंडेंसी में जो डुप्लीकेशन रिडक्शन हो रहा है, तो उसको कैसे करना है? हाउ टू रिड्यूस दी रिडंडेंसी. ठीक है, डुप्लीकेशन कैसे रिड्यूस करेंगे? तो यूजिंग कीज. तो वो जो एडवांटेज है उसका एडवांटेज को फुलफिल कौन कर रहा है? कीज. Okay, keys, keys. Okay, for example, in a student table, ID is used as a key because it is unique for each student. In person table, passport number, license number, SSN are keys since they are unique for each person. Okay. Now the next question is हमारा what is keys? आपको समझ में आ गया कि keys are used to uniquely identify the records. Records को uniquely, records मतलब क्या? पूरा डेटा. ठीक है, सपोज वी हैव क्रिएटेड द रोल नंबर कॉलम, नेम, एड्रेस, फोन नंबर. तो रोल नंबर 1 का जो हमने पूरा रिकॉर्ड जो पूरा डाला, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, तो वो पूरा उसका क्या होगा? रिकॉर्ड्स. रोल नंबर 1 का क्या होगा? रिकॉर्ड. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं. ठीक है, तो रिकॉर्ड वर्ड क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए. व्हाट इज रिकॉर्ड मतलब क्या? जो एक स्टूडेंट है
उसका होल डेटा, वन रो, पूरा फर्स्ट रो में जो भी डेटा हम लोग डाले दैट इज फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड रो में जो डेटा डालेंगे वो सेकंड रिकॉर्ड। तो वैसे जितना भी रिकॉर्ड्स विल एंटर वो आपका क्या हो जाएगा, डेटा रिकॉर्ड्स, तो उसको रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। यस, नाउ कीज हमको अप्लाई करना है। देन कीज को की कौन से कॉलम को, मैंने आपको बोला वी कैन असाइन द कीज टू द कॉलम, बट व्हिच कॉलम, कौन से कॉलम को हम लोग कीज असाइन करेंगे। ओके, तो कीज आर ऑलवेज असाइन टू, ऐसे कॉलम्स को असाइन करना है कि जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। फॉर एग्जांपल इन द स्टूडेंट टेबल में वी हैव द आईडी, नेम, address and course. Okay, for example we have created student table. In that student table we have created id column, name column, address column and course column. ठीक है, हमने इतना 4 कॉलम्स है वो क्रिएट किया। नाउ अभी हमको क्या करना है, कीज असाइन करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कीज हम लोग देखते हैं, बट फॉर एग्जांपल हमको अभी कीज असाइन करना है, तो कौन से कॉलम को, दैट वी हैव टू डिसाइड कि इन विच कॉलम वी कैन असाइन द कीज, तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगा। बिकॉज नेम जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स का सेम हो सकता है, एड्रेस भी पॉसिबल, अगर वो बाजू बाजू में है तो ऑलमोस्ट एड्रेस भी है वो सेम हो सकता है, कोर्स ऑब्वियसली कोर्स भी सेम हो सकता है। तो व्हाट इज द डिफरेंट, और व्हाट इज द डिफरेंट थिंग की थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई दी रिकॉर्ड्स को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आईडी, जितने भी स्टूडेंट्स है इन FYT SYT TYT के पूरे कॉलेज में, हर एक स्टूडेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, थ्रू दी आईडी, थ्रू दी रोल नंबर्स। ओके, so we can make the id column as a key, या तो we can apply the key to the id column। ठीक है, तो हम लोग id column को क्या असाइन करेंगे, कीज, मतलब id column को हम लोग की बनाएंगे। ठीक है, हम id column को क्या बनाएंगे, की बनाएंगे। इन स्टूडेंट टेबल id is used as key because it is unique for each student। जो कॉलम यूनिकली होगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे, id सॉरी वी विल असाइन द कीज, इसको हम लोग की असाइन करेंगे। ओके, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रिकॉर्ड्स को उसको हम लोग क्या करेंगे, कीज असाइन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाउ सी पर्सन टेबल, वी हैव क्रिएटेड वन मोर टेबल, पर्सन करके एक टेबल है, उसमें हमने वी हैव ऐड द नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर एंड SSN। ठीक है, SSN ऑल 1 2 3 4 5 कॉलम्स आर देयर। ओके, 5 कॉलम्स आर देयर। तो हम इसमें से कौन से कॉलम्स को वी कैन मेक दी कीज, कौन से कॉलम्स को हम लोग कीज बना सकते हैं, नेम को बना सकते हैं, नो नेम को हम लोग नहीं बना सकते। वाई, बिकॉज नेम जो है टेबल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा, रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगा। हो सकता है कि 2 स्टूडेंट्स है या तो 2 पर्सन है तो 3 पर्सन का नेम सेम है, तो हम लोग उसको नेम से यूनिकली आइडेंटिफाई वी कैन नॉट डन। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी पॉसिबल है कि सेम हो सकता है, एक स्टूडेंट का सेम डे सेम ईयर डेट ऑफ बर्थ पॉसिबल है। यस, इसको भी हम लोग वी कैन नॉट मेक द कीज टू दिस कॉलम। ओके, यस, पासपोर्ट नंबर सबका अलग हो सकता है, एवरी पर्सन हैज अ यूनिक पासपोर्ट नंबर, या तो लाइसेंस नंबर सबका अलग हो सकता है, किसी का सेम लाइसेंस नंबर नहीं होगा, या तो SSN नंबर, सिक्योरिटी नंबर जो है दैट इज आल्सो डिफरेंट। तो ये these 3 जो है वो वी कैन मेक दी कीज टू these 3 कॉलम्स। ओके, तो व्हाट इज कीज, कीज मतलब क्या, वी कैन मेक द कीज टू एनी कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स को टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, बट व्हाट इज द यूज ऑफ कीज, ये यूज क्या है ये कीज का, कि डुप्लीकेशन रिडक्शन करने के लिए। ठीक है, जो डुप्लीकेशन है वो डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ही रिकॉर्ड्स वो बार बार एंटर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड्स डाला, तो अगेन आई कैन नॉट इंसर्ट द रोल नंबर 1 रिकॉर्ड। हाँ, उसको we can modify that record, we can update that record, उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं, बट we cannot add more records of roll number 1। रोल नंबर 1 का हम लोग 10 टाइम्स एंटर नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। ओके, तो डुप्लीकेशन कभी होगा तो वो डुप्लीकेशन होगा तो वो हमारा जो डेटाबेस है दैट इज रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, तो वो डुप्लीकेशन रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कीज यूज करेंगे। क्लियर, वो समझ में आया व्हाट इज कीज एंड किसको अप्लाई करना है कीज, दैट इज क्लियर, यस और नो, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यस और नो। टाइप्स ऑफ कीज अभी बाकी है। ठीक है, अभी जस्ट व्हाट इज कीज एंड कौन से कॉलम्स को वी कैन मेक द कीज, वो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज क्लियर, यस और नो। अगर नहीं तो अगेन आई विल एक्सप्लेन। यस मैम, क्लियर। ओके, गुड। ठीक है, तो कीज यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कीज। ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कीज। एक प्राइमरी की है, द सेकंड इज कैंडिडेट की, द थर्ड इज सुपर की,
एंड द फोर्थ इज फॉरेन की। ओके, कीज मतलब कि ये सारे जो कीज है ना, उनका एक ही इंटेंशन है, टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, इन अवर क्लास फॉर एग्जांपल 3 स्टूडेंट्स का नेम सेम है। ओके, तो वो सेम नेम है, तो अगर हम लोग नेम कॉल आउट करेंगे, फॉर एग्जांपल कौन किसका नेम सेम है, क्लास में है कोई सेम नेम वाले स्टूडेंट्स हमारे क्लास में? नहीं है ना? अमान नहीं है मैम, आदिल आदिल। आदिल, हाँ ओके चलो। वी हैव 2 स्टूडेंट्स के जिनका नेम सेम है आदिल आदिल। अगर मैं आदिल आदिल कॉल आउट करूंगी तो कौन रिस्पॉन्स देगा? वो आदिल को लगेगा, एक आदिल को लगेगा मैम उसको बुला रही, उसको लगेगा मैम इसको बुला रही, तो दोनों में से कोई भी मुझे आंसर नहीं करेगा। आदिल आदिल अगर हम बोले, हाँ अगर आई विल कॉल आउट दी रोल नंबर, अगर मैं रोल नंबर पर्टिकुलर, दोनों आदिल का नेम आगे पीछे है बट रोल नंबर तो डिफरेंट है। ओके, रोल नंबर अलग है, एक का 10 एक का 11 रोल नंबर है। तो अगर मैं बोलूँ रोल नंबर 10 तो 10 ही मुझे रिप्लाई करेगा, रोल नंबर 11 तो 11 ही मुझे रिप्लाई करेगा। तो सेम वैसे अगर हम लोग डेटाबेस क्रिएट करें फॉर योर क्लास, आपके क्लास के लिए डेटाबेस हम लोग यूज करें, मेकिंग वी हैव क्रिएटेड द टेबल फॉर SYT क्लास, तो वो टेबल में रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, सिटी है और कॉलम्स है। तो अगर मैं आदिल का डेटा डाल रही हूँ तो रोल नंबर 10 उसका नेम, देन सेकंड आदिल का रोल नंबर 11 उसका नेम। ओके, अगर मुझे मॉडिफाई करना है या तो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, किससे यूनिकली आइडेंटिफाई करूंगी? रोल नंबर, बिकॉज रोल नंबर इज डिफरेंट फॉर बोथ दी स्टूडेंट्स। दोनों आदिल के लिए रोल नंबर अलग है। अगर मैं रोल नंबर नहीं डाल दिया तो मैं रोल नंबर जो वो उसको प्राइमरी की या कोई भी कीज अगर मैं रोल नंबर को नहीं बनाऊंगी, ठीक है, तो आई कैन नॉट आइडेंटिफाई दी आदिल के कौन सा आदिल को डेटा मुझे अपडेट करना है, क्या मॉडिफाई करना है, कौन सा आदिल का कितना ग्रेड है, कौन सा मार्क्स है, आई कैन नॉट आइडेंटिफाई। ओके, तो दोनों आदिल को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगी, रोल नंबर यूज करूंगी एंड देन एट वो रोल नंबर को आई विल अप्लाई दी कीज। पूरे रोल नंबर जो कॉलम है उसको मैं की अप्लाई करूंगी। ठीक, आदिल नेम सेम है बट दोनों का रोल नंबर मस्ट बी डिफरेंट, मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, रोल नंबर 10 आदिल दिया तो नेक्स्ट रोल नंबर 11 ही आना चाहिए, या तो फिर और कोई रोल नंबर आना चाहिए बट 10 तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज एक बार मैंने 10 असाइन किया, रोल नंबर टेबल में डाला, तो सेकंड में अगेन उसको रोल नंबर 10 एंटर नहीं कर सकती। आई हैव टू असाइन एनी डिफरेंट रोल नंबर टू दी सेकंड आदिल को। ठीक है, तो दैट इज अ की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, की बोलता है। ठीक है, दैट इज अ यूज ऑफ की। रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर असाइनिंग कीज टू द टेबल। ओके, the first there are 4 different types of key: primary key, candidate key, super key and foreign key. Today we will learn the theory. ठीक है, in the next lecture we will do the practical regarding this. ठीक है, हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि how to apply the primary key, रोल नंबर को कैसे असाइन करना है। ठीक है, हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज थियरी पढ़ते हैं, कल हम लोग प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया इसको, okay, keys, chalo. The first is primary key. Okay, primary key. What is primary key? It is the first key which is used to identify one and only one instance of any entity uniquely. Okay, an entity can contain multiple keys as we show in the person table. The key which is okay, now it is visible, I think. Okay, yes, primary key. It is a first key which is used to identify one and only one instance of an entity uniquely. Okay, an entity, what is entity? Entity matlab kya? Table. Okay, what is the meaning of entity? Entity means table. An entity can contain multiple keys. Okay, entity can contain multiple keys as we show in the person table. ठीक है, for example यहाँ पे ये person table हमने देखा, तो person is an entity. In the entities, ये entities जो है person entity है, in this entity there are 5 columns, 1 2 3 4 5. In these 5 from these 5 columns, ये passport number, license number, SSN, all are the keys. हम इसमें से ये तीनों कॉलम्स जो है वी कैन यूज एज ए कीज, हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, ये तीनों हम लोग एज ए कीज यूज कर सकते हैं। बट प्राइमरी की, ओके, प्राइमरी की मतलब क्या? ओनली वन कॉलम को वी कैन असाइन दी प्राइमरी की। ठीक है, द की विच इज मोस्ट सुटेबल फ्रॉम दोस लिस्ट बिकम दी प्राइमरी की। ठीक है, ये तीनों कीज तो है, वी कैन मेक
ये 3 कीज हम उसको यूज कर सकते हैं, बट प्राइमरी की जो है ना, हर एक टेबल को एक ही प्राइमरी की होगा, एवरी टेबल हैज ओनली वन प्राइमरी की। तो पर्सन टेबल में दिस 3 कॉलम पॉसिबल है कि कीज बन सकता है, बट प्राइमरी की हम लोग क्या करेंगे, वी कैन मेक ओनली वन प्राइमरी की, हम लोग एक ही कॉलम को प्राइमरी की बनाएंगे, वी कैन मेक ओनली वन कॉलम एज अ प्राइमरी की। ओके, वी कैन मेक ओनली वन कॉलम एज अ प्राइमरी की। तो आपको जो सुटेबल लग रहा है, पासपोर्ट नंबर या तो लाइसेंस नंबर या तो एसएसएन नंबर, जो आपको सुटेबल है उसको यू कैन मेक दी प्राइमरी की। आप कोई भी तीनों में से कोई भी किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हो जो आपको सुटेबल लग रहा है अकॉर्डिंग टू अ रिक्वायरमेंट। अगर इफ यू विल अगेन इफ यू विल अप्लाई तो प्राइमरी की पासपोर्ट नंबर को तो भी चलेगा, लाइसेंस नंबर को प्राइमरी की बनाओगे तो भी चलेगा, एसएसएन को बनाओगे तो भी चलेगा, बट व्हाट इज द रूल, क्या है, ओनली वन प्राइमरी की। ओके, एवरी एंटिटी मस्ट हैव ओनली वन प्राइमरी की, हर एक टेबल को एक ही प्राइमरी की यू कैन मेक। ओके, मतलब एक ही आप इसमें से प्राइमरी की बना सकते हो। दिस 3 आर दी कीज यू कैन से, बट प्राइमरी की किसको बनाओगे, कोई भी एक ही कॉलम को यू मेक दी प्राइमरी की। ओके, इन द एम्प्लॉय टेबल आईडी कैन बी प्राइमरी की। ओके, ये जो एम्प्लॉय टेबल हमने देखा उसमें प्राइमरी की एक ही कीज है, बहुत सारे कीज नहीं, ओनली आईडी इज द कीज, बट और एक ही है तो हम लोग आईडी को ही क्या करेंगे, वी कैन मेक दी प्राइमरी की। इन एम्प्लॉय टेबल आईडी कैन बी प्राइमरी की सिंस इट इज यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय, it is unique for each employee. In the employee table we can we can even select license number and passport number as primary key since are also unique. एक मिनट, यहाँ पे employee table नहीं, पर्सन टेबल। ओके, पर्सन टेबल मेरा नेम यहाँ पे मुझे पर्सन टेबल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने सॉरी, ठीक है चलो यहाँ पे देखो प्राइमरी वन मोर टेबल इज है, एम्प्लॉय करके एक टेबल है, उसमें एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, पासपोर्ट नंबर है, लाइसेंस नंबर, एसएसएन है। तो एम्प्लॉय आईडी इज आल्सो यूनिक फॉर एवरी एम्प्लॉयज, नेम पॉसिबल है कि सेम है, एड्रेस सेम हो सकता है, पासपोर्ट नंबर इज डिफरेंट हर एक एम्प्लॉयज के लिए, लाइसेंस नंबर इज डिफरेंट, एसएसएन इज आल्सो डिफरेंट। तो अगर ऐसे मल्टीपल कीज अवेलेबल है तो आप कोई भी एक कॉलम को यू कैन मेक दी प्राइमरी की। ओके, इन एम्प्लॉय टेबल आईडी कैन बी प्राइमरी की सिंस इट इज यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय। इन दिस टेबल वी कैन इवन सिलेक्ट लाइसेंस नंबर एंड पासपोर्ट नंबर एज प्राइमरी की, क्योंकि वो भी यूनिक है। तो ऐसे नहीं कि यू कैन चूज ओनली आईडी, अगर पासपोर्ट नंबर या लाइसेंस नंबर या तो एसएसएन नंबर्स को भी अगर इफ यू वांट टू मेक प्राइमरी की यू कैन मेक दैट कॉलम्स एज अ प्राइमरी की। बट व्हाट इज द रूल, एक ही प्राइमरी की होना चाहिए, एक ही प्राइमरी की होना चाहिए, हर एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा। कीज पॉसिबल हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, बट प्राइमरी की मस्ट बी वन एज पर टेबल। ठीक है, फॉर ईच एंटिटी, ओके, फॉर ईच एंटिटी, हर एक टेबल के लिए सिलेक्शन ऑफ द प्राइमरी की इज बेस्ड on the requirements and developers. Okay, the selection of primary key जो है that is based on requirements and developer. According, मैंने आपको पहले ही बोला, according to your requirement. For example, we have employee table है, employee table में there are 6 columns हमने बनाया है, ठीक है। तो ID नंबर, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन जो है वो कीज है, ठीक है। तो अगर आपको प्राइमरी आईडी को इफ यू वांट टू मेक प्राइमरी की तो यू कैन डू दैट। अगर आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पासपोर्ट नंबर, अगर कोई पासपोर्ट का डेटा आप लोग स्टोर करो, ठीक है, इफ यू आर मेकिंग अ डेटाबेस रिगार्डिंग टू पासपोर्ट, एम्प्लॉइज का पासपोर्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करो, एट दैट टाइम यू कैन यूज पासपोर्ट नंबर एज अ प्राइमरी की। अगर लाइसेंस को बनाना है तो यू कैन मेक लाइसेंस कॉलम एज अ प्राइमरी की, नो इश्यू, ठीक है। बट एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा। अगर आपने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया तो ये तीनों कीज को यू कैन नॉट मेक दी प्राइमरी की एट अ टाइम, एट वन टेबल ओनली वन प्राइमरी की इज देयर। क्लियर व्हाट इज प्राइमरी की? व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स, ओके। एंड द सेकंड थिंग क्या है, one table has only one table must have I am using the word must, one table must have only one primary key, एक टेबल को एक ही प्राइमरी की होना चाहिए। क्लियर प्राइमरी की? तो इन आवर प्रैक्टिकल जो हमने स्टूडेंट टेबल जो बनाया था ना, इन दैट स्टूडेंट टेबल वी कैन मेक दी प्राइमरी की, स्टूडेंट आईडी को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। टुमारो हम लोग उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि हाउ टू असाइन दी प्राइमरी की, कैसे असाइन करना, उसका सिंटैक्स है, जैसे क्रिएट टेबल का सिंटैक्स है, इंसर्ट के लिए वी हैव द सिंटैक्स, अल्टर के लिए वी हैव सिंटैक्स, डिलीट के लिए वी हैव सिंटैक्स, क्वेरी सेम वैसे ही प्राइमरी की अप्लाई करने के लिए वी हैव द सिंटैक्स। प्रैक्टिकल करेंगे तो यू विल गेट
और ज्यादा क्लियर आइडिया आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे अभी थियरी जस्ट याद रखो, प्राइमरी की मतलब क्या, एक ही हम लोग टेबल में एक ही प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं एंड वी कैन असाइन ओनली वन प्राइमरी की, वन टेबल को एक ही प्राइमरी की असाइन करेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड टाइप इज कैंडिडेट की। व्हाट इज द सेकंड टाइप? सेकंड टाइप क्या है कीज का? कैंडिडेट की। ओके, द सेकंड इज कैंडिडेट की। ओके, प्राइमरी की एक ही होगा। ओके, मल्टीपल कीज हो सकता है, मल्टीपल कॉलम्स को हम लोग की बना सकते हैं, बट प्राइमरी की कोई एक ही की को कॉलम को आप लोग प्राइमरी की बना सकते हो। नाउ सेकंड इज कैंडिडेट की। ए कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स? मतलब क्या? व्हाट इज एट्रीब्यूट स्टूडेंट? व्हाट इज एट्रीब्यूट? Properties. यस, ओके, हाँ, प्रॉपर्टीज, यस, गुड। प्रॉपर्टीज मतलब एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट सेम है कि डिफरेंट है? कॉलम एंड एट्रीब्यूट सेम और डिफरेंट? Different. हाउ, कैसे? गिव द एग्जांपल ऑफ कॉलम्स एंड एट्रीब्यूट्स का मुझे एग्जांपल दो। गिव द एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम्स का मुझे एग्जांपल दो। कोई भी टेबल के लिए, स्टूडेंट टेबल के लिए, कस्टमर, फैकल्टी, कोई भी टेबल के लिए मुझे बताओ एट्रीब्यूट्स क्या है, कॉलम्स क्या है। यस, एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज एंड कॉलम, तीनों जो है ऑल आर सेम। ओके, कंफ्यूजन नहीं रखना है। एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज और कॉलम्स तीनों सेम है। जैसा एंटिटी एंड टेबल हम लोग इंटरचेंज वर्ड यूज कर सकते हैं, टेबल को एंटिटी बोलते हैं, एंटिटी को टेबल बोलते हैं, सेम वैसे ही टेबल को, सॉरी, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी को कॉलम्स भी यू कैन से। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट इज अ entity, student is a table. In that student table we have created column id, second column name, थर्ड कॉलम रोल नंबर। ठीक है, जो भी एड्रेस, फोन नंबर, ऑल आर दी कॉलम्स। ये सारा क्या हो गया? एट्रीब्यूट्स। ये सारा क्या हो गया? प्रॉपर्टीज। ये सारा क्या हो गया? प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज और यू कैन से एट्रीब्यूट्स और यू कैन से कॉलम्स। एट्रीब्यूट्स को आप लोग कहाँ पे लिखते हो? स्टूडेंट आईडी, नेम वगैरह, वो आप उसको क्या है, कॉलम ही बनाते हो ना। फॉर द एट्रीब्यूट यू आर मेकिंग द कॉलम्स। ओके, फॉर द एट्रीब्यूट्स यू आर मेकिंग द कॉलम्स। आप एट्रीब्यूट्स के लिए क्या बनाते हो? कॉलम बनाते हो। एट्रीब्यूट कहाँ पे डिफाइन करते हो? कॉलम्स में बनाते हो ना। आईडी, रोल नंबर, फोन नंबर, ईमेल, ऑल आर दी एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स रिलेशन टेबल में, डेटाबेस में आप कैसे एज अ कॉलम आप डिफाइन करते हो। तो एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज एंड कॉलम्स तीनों सेम है। क्लियर? ओके, इसीलिए मैंने आपको पूछा व्हाट इज एट्रीब्यूट, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया ना, कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट। कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट। ओके, और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स व्हिच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल। इन प्राइमरी की में हम लोगों ने, ये स्टूडेंट प्लीज रिजॉइन करो। ओके, ठीक है। इन द प्राइमरी की में हमने क्या देखा? इट इज अ फर्स्ट की व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ओनली one and only one instance of any entity uniquely. Okay, and what is the use of candidate key? A candidate key is an attribute or set of attributes which can uniquely identify the tuple. मतलब now we can use more columns, more attributes हम लोग use कर सकते हैं records को uniquely identify करने के लिए। The remaining attributes except for the primary key are considered as candidate key. Student please rejoin करो। I want 26 students